understand the fundamentals. Okay, you'll understand the fundamentals of digital switching system. Now, so what he's saying about this is, see, the concept of SPC, that is the concept of stored program control, is extended to modern DSS. Okay, the stored program control system जो भी implement किया गया था starting में, उसको extend करके कहाँ तक लेके आए, modern digital switching system तक लेके आए. The basic element of digital switching system is similar to that of stored program switching system. तो इसका भी basic element जो भी है वो stored program में जो भी था वैसे ही है. A switching system is called a digital when the input and output switching system network can directly support digital signals. देखो कोई भी सिस्टम को हम लोग डिजिटल सिस्टम कब बोलते हैं, जब वो इनपुट और आउटपुट डिजिटल लेके आउटपुट भी डिजिटल दे रहा हो, नहीं तो डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट कर रहा हो, तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम बोलते हैं. A digital signal can be defined as a coded pulse. A digital signal can be defined as a coded pulse that can be used for signaling and control. डिजिटल सिग्नल बोले तो 1010 को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं ना. So it is nothing but a coded pulse, and that coded pulse is used for signaling, stop and start signaling, and control information के लिए भेजने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं. However, analog signal can be still processed through DSS. देखो हम लोग डिजिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम अगर एनालॉग है तो क्या करेंगे, आगे क्या बोल रहा है देखो, एनालॉग सिग्नल कैन स्टिल बी प्रोसेस्ड थ्रू DSS. एनालॉग सिग्नल को भी लेके उसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं via analog to digital converter and digital to analog converter, A to D and D to A conversion. Okay, so the evolution of digital switching system from analog switching is shown in figure. बोल के बोल रहा है यहाँ पे देखो, in this figure what is trying to show you is the evolution of analog systems to a full digital system. Just see here what all things are there. Here in the figure A, incoming lines are analog lines, outgoing lines are also analog trunks. Fine, and in between we have analog switch. Analog lines, analog trunks, and analog switch we have. Okay, this was the earlier day. The digital switching system was like this. Now, after some time, after some years of working, they are thought to replace this analog switch by digital switch. क्योंकि digital switching system or any digital communication or anything you take, digital is having more reliability, and digital is having more can say they are more what you can say robust. Signals are more robust, they can sustain the noise also. तो डिजिटल सिस्टम में बहुत सारे एडवांटेजेस थे, तो लोग क्या सोचे, एनालॉग सिस्टम को हटा के डिजिटल सिस्टम डालने के सोचिए. ठीक है, नाउ कंप्लीटली डिजिटल नहीं हुआ उस टाइम पे. व्हाट दे हैड डन इज, to the left hand side also they had analog lines, to the right hand side also they have analog trunks, but only in the switching office they have replaced the analog switch with the digital switch. Now what happens, incoming line says analog, but switching system is having digital system, so analog signals are not understandable to digital switching system. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, we have to use intermediator over here which can convert analog signals to digital signal, then give it to digital switching system, and this digital switching system receive the digital signals, process on the digital signals, and then give output in the form of digital only. Now, if you give those digital signal directly to analog trunks, then analog trunks will not be able to carry that information because it is analog. Hence, what you have to do is you have to use one more intermediator which converts digital to analog so that it can be transferred over the lines. So this was the second case. After a few more years, what they have done is again the trunks also been replaced by digital trunks. पहले एनालॉग ट्रंक्स ऊपर के फिगर में जो देख रहे हैं यहाँ पे, उसको भी हटा के डिजिटल ट्रंक्स बनाए, क्योंकि डिजिटल ट्रंक्स बहुत सारे रोबोस्ट था, नॉइज कम आ रहा था, तो इसलिए उसको भी रिप्लेस किया. तो व्हाट दे आर डूइंग इज initially they'll take analog signals, then analog to digital conversion is done, then after that it is given to digital switch, and after processing digital switch will send the data in terms of digital only. Now that digital data will be transmitted over the trunks in the digital signals only, and after that again it will be received at the receiver side by the digital switch,
and from there digital output is given and digital to analog conversion is done, then it is given back to analog trunks. Fine. So this was a case in the third option or third evolution step. And last but not least, it is the fully digital system in which we have incoming lines also digital, outgoing lines also digital, the trunks are also digital, the switches are also digital. So there is no need of converting analog to digital over here. Everything that you are seeing over here are digital in nature. Fine. So this is how the digital switching system are evolved over the years of experience. Fine. Next coming to the our topic, जो हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम बोल के टॉपिक है ना, वो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो। ठीक है, इससे पहले इसमें कुछ डाउट है तो डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डिस्कस। डू यू हैव एनी डाउट ओवर हियर? No, sir. नो डाउट्स? एहसान, ಒಬ್ಬರರ ಮಾತಾಡ್ರು ಜುಬೇರ್, ಏನಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. Hassan, can you hear me? Okay, there might be a line problem. Leave it. So shall I continue further? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us continue further with our main part in the syllabus. That is building blocks of digital switching system. Is the building blocks of digital switching system. Now, just see here, we have the figure is given for a first stage lines with the trunks. So first stage lines with the trunks बोले तो क्या क्या है देखो यहाँ पे, we have a switching fabric. Switching system को कभी कभी switching fabric भी बोला जाता है. Along with that we have network controller. Fine. And this network control, this block is given to central processor. Central processor may be your computer or a microcontroller. This switching system, switching fabric, what is there? This fabric will be having incoming lines and outgoing lines will be trunks. देखो क्या बता रहा है इसके बारे में. The development of digital DSS model is described in 4 stages. Okay, development of DSS system is described in 4 stages बोल के बोल रहा है. So out of that first stage, just now we are seeing the diagram. What is there in the first stage? Stage one of a conceiving DSS is shown in figure below. All the inputs and outputs or DSS are defined. यहाँ पे input output दोनों को define किया गया है. This stage explains the very basic kernel of DSS. यहाँ पे basic kernel बोलते हैं basic operations जो DSS में रहना चाहिए, वो सभी चीजें इसमें है बोल रहा है. With the switching fabric, the switching fabric switches the lines and trunks under the control of a central processor and a network. Just a second, my laptop battery is gone. Okay, what he's saying is the digital switching fabric switches the lines. ये digital switching fabric जो है, it will be switching the incoming lines and sending them out on the trunks. Okay, and we have a central processor and a network controller. Central processor भी है, network controller भी है. The switching fabric is a switched path through the CO.
CO मीन्स सेंट्रल ऑफिस। तो ये क्या करता है स्विच, हाँ ये स्विचिंग फैब्रिक जो करता है ये स्विचिंग का काम करता है। और हम लोग इसके साथ साथ नेटवर्क कंट्रोलर भी है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है बराबर से काम कर रहा है या नहीं है, एंटायर कंट्रोलिंग ऑपरेशन इट विल बी डूइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ सेंट्रल प्रोसेसर व्हिच विल बी कंट्रोलिंग एंटायर ऑपरेशन, बोले तो आपके कंप्यूटर के जैसा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेज 1। लेट अस गो टू स्टेज 2। फाइन, स्टेज 2 में देखो क्या बोल रहा है, द स्टेज 2 ऑफ अ DSS इज शोन इन 7 और 2.17b। बोले तो ये फिगर देखो, यहाँ पे क्या क्या पहले फिगर देखेंगे तो पहले के जैसे यहाँ पे एक सेंट्रल प्रोसेसर है, उसके बाद नेटवर्क कंट्रोलर है, उसके बाद स्विचिंग फैब्रिक है, पहले जैसा था वैसे ही है। उसके साथ साथ वी हैव लाइन मॉड्यूल्स, यहाँ पे LM बोल के लिखा हो ना छोटे बॉक्स में, LM बोले तो लाइन मॉड्यूल्स। तो द लाइन मॉड्यूल्स इनकमिंग लाइन्स आर गिवन, and after that to the trunk side we have again TM, that is trunk modules। तो ये LM और TM को नया चीज जो है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। देखो क्या बता रहा है, स्टेज 2 ऑफ अ DSS is shown in figure below, the concepts of line modules and trunk modules are introduced here। देखो लाइन मॉड्यूल और ट्रंक मॉड्यूल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है बोल के बोल रहा है। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न DSS। ये LM और TM जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, मॉडर्न डिजिटल स्विचिंग सिस्टम का। आगे देखो, द लाइन्स एंड ट्रंक्स ग्रुप टुगेदर ऑन अ सर्क्यूट पैक्स called as line or trunk equipment and connected to the switching fabric through the controlling interface। आगे क्या बता रहे देखो, ये लाइन्स और ट्रंक्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करके क्या करते हैं, ये लाइन इक्विपमेंट और ट्रंक इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे वजह से क्या होता है, लाइन्स और ट्रंक्स हमारे सिस्टम को कनेक्ट हो जाता है। आगे देखो क्या बता रहा है, सम DSS, सम डिजिटल स्विचिंग सिस्टम्स अलाउ टर्मिनेशन ऑफ ओनली वन लाइन on one line module while others allow termination of multiple lines on a single line module। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एक ही लाइन को लेकर के एक मॉड्यूल में एंड करवाते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे रहते हैं वहां पे whereas which allows termination of multiple lines। यहाँ पे एक ही लाइन को टर्मिनेट करवाया गया था, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, हम लोग मल्टीपल लाइन्स को लेकर के इसमें क्या करते हैं, उसके में उसमें डाल सकते हैं, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोथ द स्कीम्स हैव प्रोस एंड कॉन्स, बोले तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मेथड, बोले तो फर्स्ट मेथड बोले तो विच इज अलाउइंग ओनली टर्मिनेशन ऑफ ओनली वन कॉल, एक ही लाइन को जो टर्मिनेट करते हैं ना वो सिस्टम बोल रहा है। द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मेथड इज इफ अ लाइन मॉड्यूल बिकम्स डिफेक्टिव, अगर वो लाइन अगर डिफेक्टिव हो गया तो the line can be easily assigned to a new piece of a line equipment। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको निकाल के उसको हटा के दूसरा लाइन हम लोग आसानी से डाल सकते हैं। द लाइन कैन बी इजीली असाइन टू अ न्यू पीस ऑफ लाइन इक्विपमेंट, बोले तो वो वायर समझो कि वायर है तो वो वायर खराब है, वो उसको निकाल के दूसरा वायर डाल देने का, एज सिंपल एज दैट। आगे देखो डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज इज if a line goes defective this may impact a number of multiple lines if the line module carries multiple lines। देखो अगर एक ही लाइन कनेक्ट किए हैं, वो एक ही लाइन बहुत सारे कॉल्स को कनेक्ट कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 100 कॉल्स को एक ही लाइन के थ्रू जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस when this if it goes down then all 100 people will be affected, ठीक है, सबका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फर्स्ट सिस्टम। सिमिलर स्कीम्स यूज द ट्रंक्स एंड ट्रंक मॉड्यूल्स, सिमिलरली हम लोग ट्रंक स्कीम्स और ट्रंक मॉड्यूल्स को भी यूज कर सकते हैं बोल रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज द स्टेज 3। स्टेज 3 देखो क्या है, this stage 3 over here, in which what all we have a central processor, we have switching fabric again, and we have line modules, we have trunk modules, along with that we have network control processor. This is the network control processor and this is also network control processor and both will be connected together। बोले तो इनपुट साइड में नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए ये ब्लॉक यूज करता है, आउटपुट साइड में नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए ये ब्लॉक यूज करता है, ठीक है। एंड न्यू थिंग व्हाट यू आर सीइंग इज दिस IC, ये क्या है देखेंगे अभी। स्टेज 3, the stage 3 this stage introduces the concept of interface controllers for LMs and TMs। क्या कर रहा है देखो यहाँ पे, it is using the concept of interface,
इंटरफेस कंट्रोलर ऑफ LM एंड TM। बोले तो एक दूसरे इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस को कंट्रोलर के थ्रू हम लोग इंटरफेस करवाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, इट इज यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। बोले तो प्रोसेसिंग सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके लिया गया, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। दिस स्टेज रिप्लेसेस द नेटवर्क कंट्रोलर बाय नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेसर्स, NCP। नेटवर्क कंट्रोल जो था पहले के फिगर में, नेटवर्क कंट्रोलर जो था, अभी उसको निकाल के हम लोग क्या करे हैं, नेटवर्क कंट्रोलर प्रोसेसर है। तो हम लोग प्रोसेसिंग पहले, हाँ पहले यहाँ पे सिंगल था, सेंट्रली प्रोसेस करवाते थे, यहाँ पे दो अलग अलग है। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वन, यहाँ पे अलग कर रहा है, यहाँ पे अलग काम कर रहा है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, दिस स्टेज इज रिप्लेसेस द नेटवर्क कंट्रोलर बाय नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेस। The task of controlling the switching fabric is usually assigned to a series of network control processors। देखो क्या बोल रहा है, the task of controlling the switch fabric, switch fabric को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो काम को असाइन करते हैं। कहाँ पे असाइन करते हैं, इट विल बी असाइंड टू अ सीरीज ऑफ NCPs। ये NCPs बोले तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेसर जो है, यहाँ पे सीरीज ऑफ प्रोसेसर, यहाँ पे फिगर में आपको दो दिख रहा है, यहाँ पे दो है, इसे बहुत सारे भी रह सकता है। तो वो काम को हम लोग असाइन करते हैं। वो क्या करता है, दैट कंट्रोल द पार्ट ऑफ स्विचिंग मैट्रिक्स। ये क्या करता है, इट विल बी कंट्रोलिंग द पार्ट ऑफ स्विचिंग मैट्रिक्स एंड अ ग्रुप ऑफ LMs एंड TMs। इसका मतलब क्या है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेसर जो है वो जहां पे कनेक्ट करते हैं, वो वहां पे बैठ के क्या करता है, पूरा स्विचिंग मैट्रिक्स को कंट्रोल करता है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, and along with that LMs and TMs will be helping them out। The central processor controls all the network processors। ये जो सेंट्रल प्रोसेसर जो है, यहाँ पे बीच में जो रहता है ना सेंट्रल प्रोसेसर, इन्हें क्या करता है, ये सभी नेटवर्क कंट्रोलर NCPs जो रहता है, यहाँ पे दो दिख रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन दिखा है, ऐसे 2 रहा तो 2, 10 रहा तो 10, 20 रहा तो 20, वो सबको कौन कंट्रोल करता है, ये सेंट्रल प्रोसेसर जो है। दिस विल बी कंट्रोलिंग ऑल द NCPs। ओके, now this helps to increase the network size। नेटवर्क साइज को हम लोग आराम से यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज स्टेज 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेज 4। with this we'll be finishing off this topic। so again what we have, सेंट्रल प्रोसेसर है, उसके बाद NCP है, देखो NCP मिल गया, उसके साथ साथ we have switching fabric and after that we have इंटरफेस्ड कंट्रोलर IC, वहां पे था ना, वह IC था, यहाँ पे पूरा लिखा है इंटरफेस्ड कंट्रोलर। along with that we have LMs and we have TMs and after that we have something new over here that is called a SC, that is nothing but सर्विस सर्क्यूट्स। ऐसे बोले तो सर्विस सर्क्यूट्स, यहाँ पे भी सर्विस सर्क्यूट्स है, यहाँ पे भी सर्विस सर्क्यूट्स है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये जो बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स को पीछे, बॉक्स के पीछे शैडो दिख रहा, उसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ही प्रोसेसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पीस के पीछे है, मल्टीपल भी है। यहाँ पे देखो बता रहे, देखो डुप्लीकेटेड बोल के, तो यहाँ पे अलग अलग भी बहुत सारे प्रोसेस मिला के काम करते रहते हैं, इसलिए वो शैडो को दिखाया गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। द स्टेज 4 इज शोन इन फिगर D। This level presents the high level design of a DSS equipped with the interface controller and सर्विस सर्क्यूट्स टू द लिंक एंड ट्रंक मॉड्यूल्स। तो ये क्या बोल रहा है, बहुत ही हाई लेवल वाला डिजाइन है, इन विच डिजिटल स्विचिंग सिस्टम इज इक्विप्ड विद द इंटरफेस कंट्रोलर। यहाँ पे DSS को हम लोग क्या करते हैं, इट इज इक्विप्ड विद द ICC, दैट इज इंटरफेस कंट्रोलर एंड सर्विस सर्क्यूट स्विच। सर्विस सर्क्यूट स्विच को भी इसके साथ ऐड करा गया है। ठीक है, along with that the line and trunk modules we have। fine, in reality it is the initial model of DSS। अगर रियलिटी में बात करना है तो इनिशियल मॉडल जो हम लोग DSS बनाए हैं, DSS बोलो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम जो हम लोग बनाए हैं ना, वहीं पे ये सभी सिस्टम था। सभी सिस्टम बोले तो ये ऑल दिस वाज देयर इन द इनिशियल स्टेज ओनली। बोले तो ये बहुत पुराना हो गया, अभी इससे भी नए चीज अभी आ गए मार्केट में। हियर डुप्लीकेटेड स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे उसको डुप्लीकेट करके बताया गया है। सिंस टेलीफोनी प्रोसेसिंग इज नॉन स्टॉप प्रोसेस,
requires a high reliability and memory. What is saying? Here we have, see, okay. So since telephony processing is a non-stop process, it जो टेलीफोन सिस्टम जो DSS जो काम चलता रहता है वो नॉन स्टॉप प्रोसेस है, बोले तो कंटिन्यूस उसमें काम चलते रहना चाहिए, विच रिक्वायर्स हाई रिलायबिलिटी। तो कंटिन्यू प्रोसेस रहने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिस्टम लोग बना रहे हैं इट शुड बी हैविंग वेरी हाई रिलायबिलिटी एंड along with that it should be having a memory also, and memory is required for processing. Memory is required for processing the telephonic events. Telephonic event में जो भी चलता रहता है उसको हम लोग काम करवाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए मेमोरी चाहिए। मेमोरी बोले तो इंटरप्रेट डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत है। Okay, the interface controller connects LMs and TMs. देखो interface connector जो है ये controller, interface controller, it will be connecting the line module and trunk modules. The purpose of the service circuits is to provide ideal tone. यहाँ पे service circuit जो है ना SC, ये SC क्या काम करता है बोले तो it is the purpose of SC is to provide the ideal tone, ringing tone and other functions. Ideal tone बोले तो अगर घर में आपके पास टेलीफोन सिस्टम है तो एक बार वो रिसीवर उठा के देखो, अगर आप लोग रिसीवर उठाएंगे तो आप कुछ साउंड आता रहता, बोले तो इट इज एक्टिव, इट इज वर्किंग, तो दैट इज कॉल्ड एज आइडियल टोन। इनिशियली टेलीफोन का रिसीवर उठाने के बाद साउंड आता रहता, देखो वो आइडियल टोन है, ठीक है। एंड सॉरी आइडियल टोन है, डायल टोन, हाँ डायल टोन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू डायल द नंबर, ठीक है। आप लोग जब नंबर ऐसा दबाते रहते हैं ना, एंटर करते रहते हैं, दैट विल बी कॉल्डिंग एज डायल टोन। एंड रिंगिंग टोन यू अंडरस्टैंड, आप किसी को आपके फ्रेंड को कॉल किए हैं, उसको इंटीमेट करवाना है कि आपको कॉल आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग टोन को भेजना पड़ेगा एंड सम अदर फंक्शंस आल्सो। सो दीज आर द फंक्शंस दैट इज टेकन केयर बाय दिस एंटायर स्टेज 4 of the digital switching system. Okay, this completes this part, that is basic building blocks of digital switching system.